First, for the create the query, we are using the click on the database. Already we have created the tables. Now the second step is the queries. Just click on the queries, then go to the create query in the design view. There are the different type of the task here. One is the create query in the design view. Second one is the use create wizard to create query, and the create query in the SQL view. Okay. So we are using the create query in the design view. Okay, just I click on that. When I click on that, your table will be showing here. Okay, यहाँ से मैंने समझो one table I am selecting sub students and add and close. Now you can see the tables data is here. Here I am selecting general GR number. Double click on that. एक तो आप यहाँ से भी देखो, यहाँ से ऐसे कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द सेकेंड वे. फर्स्ट नेम यहाँ से लेना है तो भी कर सकते हो. देखो सर नेम लेना है यहाँ से भी कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन डबल क्लिक हियर कि भाई सीटी. ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड. ओके, जस्ट आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ द 5 fields. ठीक है, नाउ आई वांट टू रन दिस क्वेरी. I want to run this query. So here on the standard toolbar, you can see the run query. What is the shortcut key of the run query? F5 is the shortcut key of the run query. Okay, so आप F5 की को press कर सकते हो, otherwise you click here. ठीक है, और उसकी exactly बाजू में you can see this the orange color is there. ठीक है, one single triangle is there. उसको बोलते हैं switch design view. You can click. See, यहाँ पे this one is the SQL view में वो आ गया. This one is the SQL view. When you click again that, it will become back on the main screen. ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये query को run करना है. I want to run this query. Now I want to run this query. ठीक है, so run करने के लिए I am using the run query F5. Okay, now you can see on the screen. आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ठीक है, दिस इज अवर डेटा total. There are the lot of fields we have made. When we have created the tables, we have taken lot of fields, but here I am selecting only GR number, first name, surname, city and standard. ठीक है, आप जो जो field को आप select कर रहे हो ना, उसके according you will see the list of the screen. ठीक है, now what I am doing now, I close this query and just the query has been changed. Do you want to save changes? Say yes. Query number 1. If you want to give the name of this query, समझो मैंने list of students. ठीक है, then okay. I doing second one query. This one is the first query. Now query number 2. Queries. Go to the create design view. Here I am using students. Add and close. Now GR number, first name, surname, city, date of birth, gender, standard. ठीक है, अगर मैंने इतना फील्ड लिया है, you can see this one is the field. Different type of the field we are selecting here. This one is a table name. Student, 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 students. ठीक है, यहाँ पे आपने अगर 2-3 टेबल को मर्ज किया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंट टेबल्स भी आ जाएगा. नाउ हियर दिस वन इज द क्राइटेरियन. क्राइटेरियन में अगर मुझे लिखना है, समझो कि भी मैंने लिखा अहमदाबाद, AMD लिखा है मैंने. ठीक है, तो आई कैन सी द लिस्ट ऑफ द अहमदाबाद. दो स्टूडेंट्स आर लिविंग इन द अहमदाबाद सिटी. आई कैन सी द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ आई रन दिस क्वेरी. उसके पहले इफ यू वांट टू गो इन द SQL मोड में जाना है, तो क्लिक हियर. तो यू कैन सी द, देखो सेलेक्ट GR नंबर, फर्स्ट नेम, सरनेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर सिटी इज अहमदाबाद. ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज हियर तो अहमदाबाद. ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया एंड देन रन द क्वेरी. ठीक है, यू कैन रन द क्वेरी. ओके, सो यू कैन सी दिस द अहमदाबाद लिस्ट इज हियर. ठीक है, हमारे मैंने स्टूडेंट 7 स्टूडेंट्स आई हैव एंटर्ड द लिस्ट. ठीक है, इसमें से हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लिव इन द अहमदाबाद सिटी. तो देखो
GR number 11, 11, 11, 12, 14 and 16. These students are living in the Ahmedabad. ठीक है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है. If now I want to save this query, तो सेव करने के लिए first I close it, then yes, and यहाँ पे according to your query you have to give the file name. आपका query name देना है. So here I am giving the AMD. ठीक है, एक चीज मुझे और बतानी है. Again I go back in the query. स्टूडेंट्स ऐड एंड क्लोज. अगर देखो एक चीज मेन मुझे बताना है, कोई भी चीज यहाँ पे केस इज सेंसिटिव इन द बेस. ठीक है, अगर इफ यू आर वर्किंग इन द विंडोज में, इफ यू आर वर्किंग इन द MS एक्सेस ऑल्सो इज दैट केस इज सेंसिटिव. यहाँ पे आपने जो चीज कैपिटल में लिखा है तो यू हैव टू राइट इन द कैपिटल. अगर कोई चीज आपने स्मॉल में लिखा है ना तो आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा. अगर यहाँ पे समझो मैंने अहमदाबाद पूरा कैपिटल में लिखा. ठीक है, नाउ आई रन दिस क्वेरी. देखो यू कैन सी द लिस्ट. आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है बिकॉज पूरा हमने वहां पे जब भी हमने टेबल क्रिएट किया था ना तो हमने सभी टेक्स्ट वी हैव रिटन इन द स्मॉल केस. तो यहाँ पे वो चीज को वो कंसीडर कर रहा है. तो अगर यहाँ पे मैंने अहमदाबाद स्मॉल में लिखा होता ना तो वो मुझे तुरंत ही लिस्ट दिखाता. ठीक है, यू कैन सी दिस थिंग. ठीक है, तो केस इज सेंसिटिव. अगर आपने एक आधा वर्ड स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, फिर यहाँ पे आप वो चीज कर रहे हो तो वहां पे कैपिटल में ए कैपिटल किया है और यहाँ पे आप गलती से भूल गए हो तो यू विल नॉट गेट द आउटपुट. ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी बहुत ध्यान में रखनी होती है. सो आई क्लोज दिस. ऑलरेडी आई हैव सेव्ड दिस क्वेरीज, तो मैंने नो कर रही हूँ. नाउ अगेन गो टू द टेबल. See, this one is the table. Now I want to check this. Okay, how many students are female. ठीक है, मुझे लिस्ट देखना है. यहाँ तो समझो 7-8 डेटा है, बट समझो यहाँ पे 700, 800 या 1000 या मोर देन 1000 डेटा इज हियर. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, हाउ मेनी मेल्स आर देयर, तो हाउ टू do it. So we are using queries, then create query in the design view. ठीक है, स्टूडेंट्स ऐड एंड क्लोज. ठीक है, यहाँ पे आई एम सिलेक्टिंग GR नंबर, फर्स्ट नेम. जो फील्ड को आपको लेना है ना आप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है. और यहाँ पे मैंने लिया जेंडर. ठीक है, जेंडर में और साथ में मुझे समझो स्टैंडर्ड भी लेना है. अब जेंडर में यू कैन सी हियर द क्राइटेरियन इज दैट. क्राइटेरियन वहां पे मैंने F लिख दिया. देखो यहाँ पे मैंने वहां पे स्मॉल f लिखा है ना तो यहाँ पे मैं F को भी स्मॉल लिखूंगी, यहाँ कैपिटल वाला F नहीं लिखूंगी. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो दिस वन इज द SQL. जो भी आप वहां पे क्लिक करते हो ना तो उसके रिगार्डिंग पूरा एक SQL में कन्वर्ट होके आ ही जाता है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अगेन गो बैक एंड देन रन द क्वेरी. रन करोगे तो देखो 12, 13, 15, 16 एंड 17 दिस स्टूडेंट्स आर फीमेल. ठीक है, नाउ आई क्लोज दिस एंड सेव एप. ओके एंड सेव इट. ठीक है, नाउ अगेन आई चेक द टेबल. टेबल चेक किया, यहां से मुझे ऐसे देखना है कि बॉम्बे एंड दिल्ली वालों का लिस्ट निकालना है. ठीक है, सिर्फ एक साथ में 2 का लिस्ट निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो. सो अगेन गो बैक इन द क्वेरी, क्रिएट क्वेरी इन द डिजाइन व्यू, select the table, add and close, GR number, first name, CT लेना है. बस इतने ही फील्ड लेना है. समझो जेंडर भी ले लो, स्टैंडर्ड भी ले लो. अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा बॉम्बे. वहां पे जो स्पेलिंग है ना वो ही स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए. नाउ दिल्ली. ठीक है, उसके और में यहाँ पे और में समझो आपने 15-20 अलग अलग सिटीज को एंटर किया है, उसमें से आपको 3-4-5 सिटी का एक साथ में देखना है तो यहाँ और में नीचे नीचे लिखते ही जाओ आप. ठीक है, नाउ आई रन दिस क्वेरी. देखो बॉम्बे वाले 2 है और एक दिल्ली वाले स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो एक साथ में ऐसा नहीं कि एक ही सिटी का आप चेक कर सकते हो, एक साथ में 3-4 सिटी का करना है, ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो. ठीक है, नाउ सी द बॉम्बे एंड दिल्ली.
एक साथ में 2 सिटी का मुझे देखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लिविंग इन द बॉम्बे एंड दिल्ली सिटी। ठीक है, आप यहाँ पे और सिटीज को भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारी सिटीज है, उसमें से 3-4 सिटीज का एक साथ में लिस्ट देखना है ना, तो आप यहाँ पे और में नीचे ऐड करते जाओ एंड देन रन इट। ठीक है, तो यू कैन सी द बॉम्बे वाले 2 बच्चे हैं और एक दिल्ली वाले स्टूडेंट है। ठीक है, सो नाउ आई सेव दिस क्वेरी बॉम्बे एंड दिल्ली। ठीक है, मैंने उसको एक बॉम्बे एंड दिल्ली करके एक सेव कर दिया फाइल क्वेरीज को एंड आई क्लिक ऑन द सेव कमांड। ठीक है, तो वो सेव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, क्लिक ऑन द क्वेरीज, फर्स्ट आई चेक द स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन सा क्वेरी करना है। ठीक है भाई, मुझे इसमें से शाह वाले स्टूडेंट्स का निकालना है, तो दिस ऑल क्वेरीज आर वेरी सिंपल। थोड़ा सा फिर मैं आगे डिफरेंट टाइप का भी बताऊंगी। तो फर्स्ट जीआर नंबर, सरनेम, सिटी, बहुत हो गया। सरनेम में मैंने समझो यहाँ पे ले लिया शाह। ठीक है, शाह कर लिया एंड रन क्वेरी। देखो शाह वाले 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वन इज लिविंग इन द बॉम्बे एंड वन इज लिविंग इन द अहमदाबाद। ठीक है, 13 and 14 GR number is there. Now I save this and file name is शाह। ठीक है, ऐसे ही देखो आप लोग ये वाली क्वेरीज को, अगर इफ आई वांट टू ओपन दिस ओल्ड क्वेरीज, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ एडिटिंग करना है ना, तो आप क्या करोगे, वो क्वेरीज में जाके माउस का राइट क्लिक एंड द एडिट में जाओ। एडिट में गए, यहाँ शाह के साथ मैंने समझो कर दिया पटेल एंड देन देखो यहाँ पे एसक्यूएल में देखोगे ना, तो देखो सरनेम शाह और सरनेम पटेल। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, सरनेम शाह और सरनेम पटेल। ठीक है, अगेन आई क्लिक ऑन द स्विच डिजाइन व्यू, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मेन स्क्रीन पे आ गए हम लोग। अब मैं रन दिस क्वेरी, मैं रन करूंगी ना, तो मुझे देखो शाह एंड पटेल दोनों स्टूडेंट्स, दोनों सरनेम वाले बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे अब ये देखना है जो बच्चों का नाम एस से शुरू हो रहा है, जो बच्चों का नाम देखो यहाँ पे सपना, सेजल, स्वाति, देयर आर द 3 स्टूडेंट्स, दोज नेम स्टार्ट विद द एस। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, क्वेरीज, क्रिएट क्वेरीज इन द डिजाइन व्यू, ऐड एंड क्लोज, जीआर नंबर, फर्स्ट नेम, सरनेम, सिटी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा लाइक देन एस स्टार। ठीक है, now here I am writing the criteria, like command, then space, then single quote, कौन से नाम वाला स्टार्ट करना है, ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट से जो भी नाम आपने एंटर किया है A to Z में से कोई भी कैरेक्टर का, यू कैन फाइंड इट, बट वो आपके उसके लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, और एस देन स्टार एंड देन सिंगल कोट्स एंड देन रन द क्वेरी। ठीक है, देखो ऐसा आ गया। अगर आप यहाँ पे गए और यहाँ पे समझो मैंने लिखा के अगर, ठीक है, और मैंने रन किया तो नो वन इज दैट। ठीक है, कोई भी नहीं है। अगर मैंने वापस एस कर लिया, देख लो। ठीक है, अगर आप एसक्यूएल में जाके भी ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई सेव दिस क्वेरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस से शुरू होने वाले कितने स्टूडेंट्स आर देयर, कितने स्टूडेंट्स है, तो उसका पूरा लिस्ट निकल गया। ठीक है, नाउ क्लोज, यस, यहाँ पे लिखा मैंने एस, नाउ सेव इट। इतना क्वेरीज हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, टेबल्स में गए, यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि पीछे ए आ रहा है, तो ऐसे 2 बच्चे हैं आस्था एंड सपना, लेट्स सी, देख लेते हैं। क्लिक क्वेरीज, क्रिएट क्वेरी इन द डिजाइन व्यू, स्टूडेंट्स, ऐड, क्लोज,
GR नंबर, ठीक है, सिटी, जो भी जितने भी फील्ड चाहिए ना आप उसको ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा क्राइटेरियन में लाइक स्पेस, अब स्टार करके मैंने ए लिखा अगर, ठीक है, देख लो आस्था। नाउ सेव इट, स्टार ए। यहाँ पे मैंने डबल ए किया अगर, ओके कोई भी नहीं है ऐसा। नाउ क्लोज दिस क्वेरी, ठीक है, स्टार्ट। नेक्स्ट थिंग, अब मुझे ये देखना है जो GR नंबर है ना, GR नंबर में यहाँ पे 13 से लेके 16 तक के डेटा देखने हैं, 13 से लेके 16 तक के डेटा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, क्वेरीज, क्रिएट क्वेरी इन द डिजाइन व्यू, एड एंड क्लोज, GR नंबर, फर्स्ट नेम। देखो ये गलती से अगर फर्स्ट नेम डबल हो गया ना तो उसमें क्या करना है, वो यहाँ पे जाके माउस का राइट क्लिक करके डिलीट बटन, ठीक है, सीटी। यहाँ पे फर्स्ट नेम में, सॉरी GR नंबर में मुझे समझो कि ग्रेटर देन अभी करना है कि 1113, एक सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 1113, उसके ऊपर वाले डेटा देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो, GR नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी कि उसको भी कंसिडर करेगा, ये वाला भी शो करेगा। नाउ आई रन इट, देखो तो 11 और 11-12 वाला चला गया, स्किप कर दिया, और 13 से लेके 17 तक के डेटा हमें शो कर रहा है। अब मुझे इसमें क्या करना है, एंड लगाना है और लेस देन इक्वल टू 1116 करना है। देखो इफ यू वांट टू इंक्रीज द कॉलम तो आप कर सकते हो। देखो मैंने बीच में एंड लगाया और मैं रन कर रही हूँ तो देख लो, ठीक है, यू कैन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1113 से लेके 16 तक को भी वो शो कर रहा है, बिकॉज वी आर टेकिंग इक्वल टू साइन। अगर हमने इक्वल टू साइन नहीं लिया होता ना तो वो चीज को वो यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करता, 15 तक को, 15 को ही वो डिस्प्ले करता। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लिया है ना तो वो 13 को भी शो कर रहा है और 16 को भी शो कर रहा है, ठीक है। सो इट इज द लिस्ट ऑफ द whose GR number is greater than equal to 1113 and less than equal to 1116, ठीक है। Now I close this query, yes। आप इस तरीके से मार्क्स का भी कर सकते हो, चेक करना है कि भाई मुझे 80 से 90 या 80 से 100 वाले स्टूडेंट्स का लिस्ट देखना है। इफ आई वांट टू चेक द लिस्ट ऑफ द ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड लेस देन 50, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक द लेस देन 33 so you can also check by this way, आप ऐसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू, ठीक है, कंपैरिजन, चलो ना कंपैरिजन COMP, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। नाउ आई क्लिक ऑन दिस सेव कमांड, ठीक है, तो इतना मेरा क्वेरीज हो गया। नाउ आई गो बैक स्टूडेंट्स फाइल। यहाँ पे मुझे अभी एक चीज और देखनी है कि जिसका सिटी बॉम्बे हो और वो पटेल हो, दोनों में से एक चीज को कंसिडर करना चाहिए। अगर वो उसका सरनेम पटेल है और वो बॉम्बे में रहता है, किसी को ऐसा देखो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सरनेम में, देखो बॉम्बे वाले सरनेम, सॉरी पटेल वाले सरनेम यहाँ पे दो है, बट एक अहमदाबाद वाला है और एक है बॉम्बे वाला। तो यहाँ पे और के अंदर क्या होता है, और के अंदर दोनों में से एक चीज करेक्ट होना चाहिए, दोनों में से एक चीज सही है ना तो आपका वो आउटपुट मिल जाएगा। बट एंड में क्या होता है, दोनों चीज कंसिडर होनी चाहिए। अगर एंड के हिसाब से आप देखोगे ना तो इट विल शो ओनली द स्वाति वाला ही दिखेगा, पटेल एंड बॉम्बे। बट यहाँ पे क्या है, पटेल एंड अहमदाबाद है, बट हमारा क्वेश्चन क्या है, सिटी बॉम्बे है और सरनेम पटेल हो, तो देख रहा अब दोनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये वाले पटेल में तो देखो
यहाँ पे देखो ये वाली चीज भी शो करेगा। लेट्स सी, हम एक बार देखते हैं। क्वेरीज में गए, क्वेरीज, एड एंड क्लोज, जीआर नंबर, फर्स्ट नेम, सरनेम, सिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर लिया पटेल, सरनेम में मैंने लिया पटेल, और यहाँ पे और में, यहाँ सिटी में मैंने ले लिया बॉम्बे। देखना, आप देखना आउटपुट। और आई रन दिस क्वेरी, देखो 3 आ गए। क्यों 3 आ गए, अब मैं आपको वो बता रही हूँ। हमने और लिया है यहाँ पे, और में दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना, तो भी वो चीज को कंसिडर करेगा, ठीक है। यहाँ पे भले उसकी सरनेम पटेल नहीं है, फर्स्ट सपना में, सपना में उसकी सरनेम पटेल नहीं है, बट यहाँ पे वो बॉम्बे में रहता है, तो दोनों में से एक चीज तो सही है ना, तो उसको उसने यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ स्वाति वाले में देखो दोनों चीज सही है, ठीक है, तो देखो उसने शो कर दिया। यहाँ पे क्या है, सरनेम पटेल है बट वो रहता है अहमदाबाद में है, बट एक चीज तो सही है ना, तो वो चीज को वो कंसिडर करके तीनों का लिस्ट आ गया। और जब कंडीशन यूज कर रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग और कंडीशन, ओनली वन कंडीशन विल बी ट्रू होगा, तो भी आपका आउटपुट मिलेगा। बट इफ यू आर यूजिंग एंड फॉर्मूला, अगर आप एंड कंडीशन को चेक कर रहे हो ना, तो दोनों सेम होना चाहिए। अगर एंड होता ना, तो सिर्फ स्वाति वाला ही वो शो करता, पटेल एंड बॉम्बे, सरनेम और सिटी, तो स्वाति को ही यहाँ पे शो करता। बट यहाँ पे हमने और में किया ना, तो यहाँ पे एक ही को वो चेक करता है। नाउ यस, और यहाँ पे मैंने ले लिया और, ठीक है। नाउ टेबल्स में गए, स्टूडेंट्स में गए। नाउ नेक्स्ट थिंग, मुझे जिसका बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि एक सेकेंड, 2000 के ऊपर वाला लिस्ट देखना है डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट गो टू द क्वेरीज, स्टूडेंट्स, डबल हो गया ना, क्लोज। आई डिलीट दिस टेबल, एक्स्ट्रा वन, एंड द डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे समझो मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, ठीक है। इट शोज ऑल, बिकॉज मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ईयर डेट डालना पड़ेगा। देखो जैसे मुझे ऐसे चेक करना है कि जिसकी बर्थडे इससे इतने के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कमांड है, एक मिनट, हाँ वेट, ग्रेटर देन, उसके बाद स्पेस दिया मैंने, हैशसाइन किया, फिर मैंने समझो लिखा 01 से लेके 04 से लेके 2004 स्पेस, फिर से हैशसाइन, यहाँ पे ये स्पेस हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैंने समझो ले लिया 2000, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू हैश, और यहाँ पे मैंने लिखा स्पेस देके एंड लिखा है, एंड करके लेस देन इक्वल टू, समझो मैंने किया एक 01/12/2002, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आगे हैश साइन डालना है। ये चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सी, अगर आपने ये मैंने लिखा यहाँ पे कि ग्रेटर देन इक्वल टू
1 अप्रैल 2000 से लेके एंड 1 दिसंबर 2002 के बीच में इतने स्टूडेंट्स है, ठीक है। आई वांट टू चेक द लिस्ट। तो देखो देयर आर द 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो ये मेरा हो गया, जस्ट आई क्लोज दिस। यहाँ पे मैंने लिखा बीओडी, ठीक है। अब देखना मैं थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ। टेबल में गए, यहाँ पे मैं थोड़े से यहाँ पे थोड़े एक दो के मैं यहाँ पे 2002 कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया ठीक है। आई क्लोज इट एंड सेव दिस। अब मैं क्या करूँ, टू पेरिस में गए, अभी ये बीओडी वाली डेट में मैं गई, यहाँ पे आई एम चेंजिंग समथिंग। ओहो ये क्या हो गया, यहाँ पे एंड, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दो। क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फिर से, एंड लेस देन इक्वल टू हैश 01/12/2000, समझो 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैंने हैश किया, नाउ आई डन इट। एक मिनट, GR नंबर, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू, देन हैश साइन 1/4/2000, then again hash sign, then and, then less than equal to, then hash sign 1/12, ठीक है ना, 2004, और यहाँ पे हैश, ठीक है। देर आर द 2 स्टूडेंट्स वहां पे, दैट मीन्स चेंज कुछ नहीं हुआ है। सी नाउ क्वेरीज में गए, देखो यू कैन सी द लिस्ट, ये जो 2000 से लेके 2003 के वाले कितने स्टूडेंट्स है, ठीक है। अगर आपको ये वापस देखना है क्वेरीज में जाके, तो माउस राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द एडिट ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में, ठीक है। दिस वन इज द क्वेरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, दो सेकेंड टेबल, सी टेबल, यहाँ पे अब मुझे देखना है कि जो स्टूडेंट्स 10 वाले कितने स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, क्रिएट क्वेरी, स्टूडेंट्स, ऐड एंड क्लोज, GR नंबर, फर्स्ट नेम, स्टैंडर्ड ले लो। यहाँ पे 10 चाहिए तो 10 ले लो, साथ में नीचे 11 भी चाहिए। मैंने टोटल 10, 11, 12 डाले हैं, ठीक है, स्टूडेंट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे 10 और 11 का चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो उसको ये करके चेक करो, सी ओनली 10। अगर यहाँ पे आपको चाहिए ओनली 12 के स्टूडेंट्स का लिस्ट, ठीक है। दिस वन इज 12, सेम योर 11, ओके। नाउ I save this standard. Now I save this file. Okay? I show you again. This is the query 1. This one is the query 1. If I want to open this query, mouse right click
Query 1, mouse right click on the edit option. ठीक है, एडिट में गए ना, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है. आई शो यू अगेन दिस क्वेरी. सी, क्वेरीज में गए, क्रिएट क्वेरी इन द डिजाइन व्यू, देन सिलेक्ट द टेबल एंड क्लोज, select the field. Now date of birth, यहाँ पे I show you again, greater than equal to 1st April 2000, ठीक है. उसके पहले हैश साइन रखना है ऐसे, उसके पीछे भी ऐसे, then space and function we are using here, greater than equal to hash sign first, then dash 12 2004, then hash sign. Now I run this. I run this query. Okay. See, go to the queries, create query in the design view, add and close, GR number, first name, then surname. Next one is the okay, students, see, यहाँ पे so here I am using, click on the queries, create query in the design view, select the table, add and close, GR number, first name, surname, ठीक है, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टैंडर्ड, ठीक है. नाउ देखो, हमने जब भी एंटर किया था डेटा ना, so we have written in the ascending order. Now I want to check in the descending. So there are the sort option is here. There are the two types of the sorting, ascending or descending. Okay, here I am selecting descending. यहाँ पे जैसे descending किया, then I SQL query, run the query, so you can see here the GR number descending. ठीक है. Now I go back and then I run the query. जैसे ही मैंने query को run किया ना,